Hello students, I am your Zed sir welcoming you all on this Science and Technology Standard 10 lecture number 5. Today we are going to start our new chapter. So before starting this chapter, I think I should give some brief introduction about this chapter and I will not give you the which chapter I have start. You automatically understand. Okay, so to live alive we need three things: roti, kapda, makan. Okay, roti which we are getting, kapda which we are getting, and makan which have already. But to carry these all three things, what we need? We need a money. Okay, now other thing which I added in this modern time period, because of this modern time period, that is one thing that I will give you idea, you will automatically understand. Why? Because according this period we need roti, kapda, makan. How we will get? We need some money. Okay, and that money come from through our work, and that work will be from your home or from your office. Already the technology is come up to great. Okay, and you can work from your home also. So to work from your home you need एनर्जी. ओके, अगर तुम्हें काम करना हो, तुम्हें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी तुम्हें कहां से मिलेगी? हाउ यू विल गेट द एनर्जी? यू विल गेट द एनर्जी फ्रॉम फूड. ओके, एंड इफ जिससे आप काम कर रहे हो, जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो, होम बेस्ड काम कर रहे हो, घर पे बैठ के काम कर रहे हो अपने ऑफिस का, किस पे काम करते हो? लैपटॉप पे. यस, यू आर वर्किंग फ्रॉम लैपटॉप, सो लैपटॉप ऑल्सो नीड एनर्जी. यस, अगर आपको बाहर क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, हर जगह पहुंच नहीं सकते. यू विल गो थ्रू ए टीवी. ओके, टेलीविजन. सो टेलीविजन ऑल्सो नीड एनर्जी. इफ यू वांट टू टॉक विथ योर फ्रेंड, कॉल टू योर फ्रेंड, इफ यू चैट विथ योर फ्रेंड, यू नीड ए मोबाइल. इफ यू नीड एसी, ओके, इफ यू नीड एसी, अगर आपको गर्मी लगे तो एसी चालू करोगे. दे ऑल्सो नीड एनर्जी. सो दे ऑल नीड एनर्जी. सो आई कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रिकल आइटम नीड एनर्जी. That energy is, yes, आप सही समझे हो, that energy is electricity. If I ask someone that what is electricity, so they told me that bulb glow, bulb चालू हुआ, electricity है. फैन चालू हुआ, electricity है. AC से हवा मिल रही है, electricity है सर. ये नॉर्मल इंसान का जवाब होगा. If I ask to student, if I ask to some scientist, if I ask to some engineer, or if I ask to some teacher, okay, so what they give me answer? So electricity means the flow of charge. Electricity क्या है? एक एनर्जी है. ठीक है, electricity is nothing but the, और chapter is electricity. Okay, and in your textbook it is the chapter number 12. Okay students, now if I say that electricity, so electricity is, I can say, one type of energy. Then how we getting electricity? Electricity में होता क्या है? So I can say that it is the presence or flow of charge. Okay, what I can say, presence or can say flow of charge is known as electricity. Okay sir, we had understand the flow or you can say presence of charge is known as electricity. ठीक है, समझ गए इतना. अब सर we have question this, what is charge? Will you please explain me what is charge? Yes, सुनो, charge is nothing but the, if I talk about charge, see, charge I can talk called as a, it is a property of a body, or you can say internal property of the body. It is the
you can say internal property or you can say intrinsic property, okay, or you can say property. Of the body. Sir, we had understand that charge is the property of the body. So body क्या है? So what is body? So everything which is in the universe is made up from some small particles, atom. Okay, the atom combines with the other and form a body. एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक बॉडी बनती है. हम भी क्या बॉडी एक एटम से बने, एटम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बने. जितनी कोई भी चीजें हैं यूनिवर्स के अंदर वो एक स्मॉल पार्टिकल से बनी है, एटम से बनी है. ओके, सो एटम, so charge came from atom, body is our atom. So what is atom, sir? So ये जो एटम बता रहा हूं, I am giving you this one for your understanding, for your clearing the concept of charge. ठीक है? तो सर एटम क्या है? So atom is nothing but it has, I can say, there is one orbit, okay, and in it there is a nucleus. क्या बोलते हैं इसको? इसको न्यूक्लियस बोलते हैं. Okay, and nucleus have proton positive charge, neutron zero charge. एंड जो ऑर्बिट पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इससे ऑर्बिट बोलूंगा मैं, आई विल कॉल इट ऑर्बिट. सो चार्ज केम फ्रॉम हियर, चार्ज केम फ्रॉम एटम. ओके, चार्ज केम फ्रॉम एटम एंड एटम हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज. चार्ज इज, सी नाउ next point is starting. This is for more information I am giving to you. Charge came from atom. So atoms are two types, positive and negative. No, atom not charge, sorry. Charge are of two types. Okay, how many types of charge we have? We have two types of charge. First one is positive charge. Okay, second one is negative charge. दूसरे क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज बोलेंगे. ओके, यहां तक समझ में आ गया? ये अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए. देखिए यहाँ पे क्या है. पहले तो क्या दिखा है यहाँ पे, अब देख लीजिए. ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन दी है और डिफाइन किया है मैंने इसको. अब चार्ज है, चार्ज क्या है वो मैंने डिफाइन किया है. बाद में एटम को मैंने एक्सटर्नली समझाया आपको कि एटम कहाँ से आया है, एटम के अंदर चार्ज कहाँ से आया है. चार्ज हमें कहाँ से मिला है? चार्ज एटम में से मिला है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कितने टाइप के चार्ज हो गए? तो चार टाइप्स ऑफ चार्ज. चार्ज आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ओके, ये इतना अपनी बुक में लिख लीजिए. सो नाउ आई एम रबिंग दिस. सो इफ यहां तक वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज available. Okay, the charge is positive charge and second charge is negative charge. Okay, ये दो चीजें पता चल गई हमें. तो हम थोड़ा और अंदर समझने की कोशिश करते हैं. अब चार्ज भी है, दे हैव सम देयर ओन वैल्यू. चार्ज होगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, है क्या नहीं? तो वैल्यू ऑफ चार्ज देख लेते हैं. वैल्यू ऑफ चार्ज. ओके, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी?
So the value of charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. ओके, अब जो चार्ज होता है ना, द SI यूनिट ऑफ चार्ज, आई कैन से लाइक दैट, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, which you can express by capital C. ओके, तभी मुझे पता चला भाई चार्ज की वैल्यू 2 है. ठीक है, सॉरी, चार्ज की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. बस बिफोर वी हैड अंडरस्टैंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ओके, सो दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी, है कि नहीं? ऑब्वियस का आंसर है. तो यहाँ पे दोनों के लिए एक ही वैल्यू है, यहाँ पे दोनों के लिए एक ही वैल्यू है, बोथ ऑफ हैव सेम वैल्यू, बट टू एक्सप्रेस देम दैट दिस इज द वैल्यू फॉर पॉजिटिव एंड दिस इज द वैल्यू फॉर नेगेटिव, वी हैड मेक दैट सिंबल. अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, वैल्यू के पीछे कुछ नहीं है, मीन्स पॉजिटिव, मीन्स इट इज पॉजिटिव चार्ज वैल्यू, एंड यहाँ पे अगर माइनस कर दिया एंड 1.6 into 10 raised to minus 19 लिखा, it means this is charge for negative charge value. Okay, we understand that much, that value of the charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. कूलम क्या है? वो SI यूनिट है चार्ज का. अब चार्ज को हम डिफाइन करेंगे वैल्यू से, तो दो टाइप की हमारे पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. दोनों के लिए वैल्यू सेम रहेगी. दिखाना हो पॉजिटिव चार्ज तो आगे पीछे प्लस रखो, नेगेटिव चार्ज दिखाना हो उसकी वैल्यू दिखाने तो पीछे माइनस रखो. यहां तक क्लियर? नाउ वन थिंग यू ऑल्सो कीप इन माइंड दैट मास ऑफ चार्ज, मास ऑफ चार्ज, ओके, दैट यू कैन से m. तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 into 10 raised to minus 27. 1.6 into 10 raised to minus 27 kg, whereas mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg approx. Okay, so from this we can say that mass of proton is more compared to mass of electron. ठीक है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर में, सो आई कैन से दैट देयरफॉर MP इज ग्रेटर देन ME. 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है ये, साइंस के भी पूछते हैं, जी में, नीट में भी क्वेश्चन आता है ये, और अगर पूछ लिया 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड में तो ये भी याद रखना 1 मार्क्स के लिए. वैल्यू भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, SI यूनिट भी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए. ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ही बोले हम कि एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए वो फ्रीली राउंड होता है. ठीक है, तो अब ऐसा भी आता है दिमाग में कि सर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव हो रहा है, बीच में प्रोटॉन है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन है, तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. एक तो इसका वेट कम है तो इजीली गुम हो सकता है, राउंड हो सकता है, वो सर्कल कर सकता है. दूसरा पॉइंट, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लग रहा होगा फोर्स. ओके, अब नए पॉइंट पे आ रहे हैं, देखना. एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है बीच में, अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो एक तो उसका मास कम है इसलिए वो रिवॉल्व हो रहा है प्रोटॉन के कंपेयर में, क्योंकि प्रोटॉन का मास कम है तो रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी भाग सकता है. मैं क्यों घूमूं भाई, मैं वहां पे तुम्हारे पास क्यों रहूं? मैं तो चला जा रहा हूं भाई, मुझे रहना नहीं तुम्हारे साथ. आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू. इलेक्ट्रॉन विल से टू प्रोटॉन, बट देयर इज नॉट हैपन एनीथिंग. व्हाट इज हैपनिंग हियर? द इलेक्ट्रॉन इज हैव टू स्टे विथ प्रोटॉन. व्हाई? बिकॉज ऑफ सम फोर्स. द फोर्स आर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स. ओके, there are 2 types of force. Write this one, okay, or else take a screenshot.
Okay, now I think you have taken a screenshot already. So from this we can understand that proton is an electron. प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है, ठीक है, तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा चार्ज के बीच में. सो अकॉर्डिंग टू चार्ज मैं ऐसा लिख सकता हूं, नया वाला पॉइंट चालू हो रहा है. अकॉर्डिंग टू चार्ज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स. दो टाइप के फोर्स हैं. फर्स्ट फोर्स हियर, सेकेंड फोर्स यहां पे लिखूंगा मैं, ठीक है. कौन कौन से फोर्स है? फर्स्ट फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स. रिपल्सिव फोर्स. And second force is attractive force, or you can say attraction force. There are two types of force. Okay, now where the repulsive force act and where the attractive force act, that we will discuss right now. Okay, so we have two types of charge. If there are two like charge means दोनों के दोनों चार्ज सेम होने चाहिए, ठीक है. दोनों के दोनों चार्ज सेम हुए, PP और EE, you can say this is like charge. You can say like charge. Okay, when two like charge, P negative negative, positive positive, okay, when come to each other, there is a force called a like charge. Have which type of force? Repulsive force. Okay, so write this in your book so I can rub this. So the negative charge and positive charge are like charge and have repulsive force. If I have two charge, both are different, that is negative charge and positive charge are unlike charge. These charge are known as an unlike charge. Okay, and they have attractive force. Okay, now the first point I already initially told you that SI unit of charge is coulomb. So here we can understand that charge are of two types, positive charge, negative charge. Okay, charge have two types of force, repulsive force, attractive force. The force between these two charge are depend on charge only. Okay, which type of charge? Like charge have repulsive force and unlike charge have attractive force. Now the point came that we know that the value of charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. If I ask that 1 coulomb is equal to how much electron, 1 coulomb is equal to how much electron, ठीक है. तो there is a formula Q is equal to NE. ओके, अब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, ठीक है. तो 1 कूलम मीन्स, कूलम को किसमें दिखाते हैं? अभी एक चीज वो पता होनी चाहिए आपको कि चार्ज को डिफाइन किसमें करते हैं? कूलम में. मैंने आपको पहले ही बोल दिया था. तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या हुआ? कूलम. तो 1 कूलम मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज. ओके, एंड आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम. ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो फॉर्मूला है इस पे से आप फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम. सो 1 कूलम मीन्स चार्ज इक्वल टू 1 इक्वल टू n हमें फाइंड करना है. E मीन्स द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 into 10 raised to minus 19. Okay, अब now what we have to do, therefore n is equal to 1 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19. ओके, ये कर दिया. आफ्टर सॉल्विंग दिस, ओके, सी सबको दिख रहा है. आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें
इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिवाइड क्या करना है हमें, n को वहीं पे रखा है और 1.6 को कहाँ रखा है, नीचे रख दिया है। ठीक है, 1.6 को नीचे कर दिया है, मल्टीप्लाई बाई 110⁻19 है। ठीक है, तो अभी अगर इसको एक बार डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 6.25 × 10⁻18। देखिए 6.25, आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें मिलता है 6.25 × 10⁻18 मिलता है। अभी यहाँ पे आपकी बुक के अंदर, द बुक हैव द वैल्यू 6, अब इसको मैं बोलूँ ना बुक में क्या वैल्यू है, बुक में वैल्यू है 6.28। ओके, दे टेक द राउंड ऑफ, दिस इज माई एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज माई वैल्यू ऑफ बुक। एनसीईआरटी बुक के अंदर तुम्हें वैल्यू दी है 6 × 10⁻28। ठीक है, और आफ्टर हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमें 6.25 मिलेगा × 10⁻28, पर ये राउंड ऑफ करके 6, दोनों सेम है, दोनों राइट है, दोनों में कहीं मिस्टेक नहीं है। ठीक है, एग्जाम में जो भी पूछे जो भी हो राइट ही है दोनों को दोनों। सो हियर आई एम कंप्लीटिंग द चार्ज। ओके, नाउ चार्ज, अकॉर्डिंग टू चार्ज द इलेक्ट्रिसिटी आर क्लासिफाइड। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ज इलेक्ट्रिसिटी इज क्लासिफाइड। हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज क्लासिफाइड, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी क्लासिफाई कर दी है चार्ज के हिसाब से। तो देखिए अकॉर्डिंग टू चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्लासिफाइड। अब दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है, पहली होती है स्टैटिक, दूसरी होती है करंट। नाउ स्टैटिक मीन्स इन विच अकॉर्डिंग टू चार्ज इलेक्ट्रिसिटी क्लासिफाई हुई, मतलब चार्ज इसमें स्टैटिक होंगे। स्टैटिक मीन्स इज एट वन प्लेस। ओके, द चार्ज इज नॉट मूविंग। इलेक्ट्रिसिटी मैंने क्या बोला था, प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ चार्ज है, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब प्रेजेंस ऑफ चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक एग्जांपल सब दे दो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो उसका एक एग्जांपल है द कॉम। ओके, और स्केल, प्लास्टिक सेल विच यू आर यूजिंग एट स्कूल। ओके, लाइन गिराने के लिए। तो व्हेन यू रब दैट स्केल ओके इन योर हेड, उसके बाद अगर एक छोटा सा कागज लो, व्हेन यू ब्रिंग दैट स्मॉल पेपर एंड प्लास्टिक स्केल विथ टुगेदर, तो क्या होगा, जो पेपर होगा इट विल अट्रैक्ट टू दैट प्लास्टिक स्केल। ओके, द पेपर अट्रैक्ट टू द प्लास्टिक स्केल। सो हाउ इट हैपन, इट इज हैपन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। एक बार आपने जब घिसा ना यहाँ पे सर पे, तो यहाँ पे चार्ज का एक्सचेंज हो गया। समझ लीजिए कि प्लास्टिक्स पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सर में चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, और सर में नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, प्लास्टिक में पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। दैट वी डोंट नो, बट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ओके, फ्रिक्शन की वजह से ही हुआ। यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, आपने घिसा तो चार्ज एक्सचेंज हुआ। तो उसके अंदर जो भी चार्ज होगा, तो पेपर में जो भी चार्ज होगा, उन दोनों बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है। चार्ज का तो स्टेबल था, वहीं पे था, अट्रैक्ट हुआ तो स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अट्रैक्ट हुआ, तो इसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ हियर इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो समझाने के लिए आपको समझाया। राइट नाउ ये ज़्यादा समझने के लिए आपको 11-12 साइंस में ज़्यादा डिटेल में आएगा। ठीक है, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें। करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या, कि जो चार्ज आपके कंडक्टर में से फ्लो होता है, ठीक है, जो मूव करता है आपको पावर देने के लिए, उसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज ओनली। करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स इट इज नॉट एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से करंट। फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है मतलब करंट हो रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं फ्लो ऑफ चार्ज, उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकता हूं। सी से मैं स्पेसिफाई करता हूं, सीई से मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, और यू कैन से करंट भी बोल सकता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैं। नाउ सर व्हाट इज करंट?
नाउ द क्वेश्चन अराइज सर व्हाट इज करंट, करंट क्या है? तो मैंने बोल दिया सर, पहले ही आपको मैंने बता दिया, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो हाउ विल से डिफाइन, कोई टेंशन नहीं बच्चा, अभी सब डिफाइन कर देते हैं। अब करंट पे आते हैं, ठीक है, ये लिख लेना। नाउ व्हाट इज करंट सर, हमने चार्ज समझ गया कि चार्ज ऐसे ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, कहाँ से आया, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मास क्या है, ठीक है। अब व्हाट इज करंट सर, सी बच्चा लो, करंट इज नथिंग, पहले बोल दिया हमने मैंने आपको कि फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज को मैं कैसे स्पेसिफाई करता हूं, करंट को मैं स्पेसिफाई करूंगा आई से, ठीक है। करंट इज इक्वल टू मैंने क्या बोला, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज किससे डिफाइन करता हूं मैं, क्यू से, ठीक है। अब ये चार्ज फ्लो होता है कहां से, आपकी केबल से, ठीक है, जो कंडक्टिव केबल होता है उसमें चार्ज फ्लो होता है। अब आप घड़ी देखोगे तो आपने देखा कि 1 मिनट के बाद, 1-2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद आपका जो टाइम होता है, 2 घंटे के लिए आपने बल्ब चालू रखा, 3 घंटे के लिए बल्ब चालू रखा, ठीक है, तो उस हिसाब से उसमें चार्ज फ्लो होगा, है ना, टाइम के हिसाब से चार्ज फ्लो। अगर आपने स्विच बंद कर दी, टाइम खत्म, चार्ज बंद हो गया, चार्ज बंद हो गया मतलब करंट नहीं, करंट नहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्लियर हुआ। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या आता है, पर यूनिट टाइम, तो टाइम पे भी डिपेंडेंट है, ओके, टाइम में भी डिपेंडेंट है। तो ऐसा मैं डिफाइन कर सकता हूं, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए सिर्फ, करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। सो करंट किसको प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना चार्ज ज्यादा समझ लीजिए करंट उतना ही ज्यादा होगा, क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज ऐसा यूनिट ऑफ what is the SI unit of current? So SI unit of current is A. A means ampere, okay. The name ampere is introduced after the scientist, okay, Andre Marie Ampere, जिसने ये करंट फाइंड किया था, तो उसके ऊपर से उसने नाम दिया कि इट विल बी मेजर्ड बाय माय ओन फर्स्ट अल्फाबेट, ओके, इसका एम्पियर उसका नाम में ही है, ठीक है। तो करंट का क्या हुआ, एम्पियर हुआ, ठीक है, चार्ज का क्या हुआ, कूलम हुआ, टाइम क्या क्या हुआ, टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकेंड, ओके। तो अभी क्या बात आती है कि सर करंट पता चल गया, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, करंट होता है, ठीक है। तो अभी 2 चीजें आती है, करंट कहाँ पे फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है केबल्स के अंदर, ठीक है। सो अगर केबल में करंट फ्लो हो रहा है, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा एक ये केबल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया है, ये बल्ब है मेरा, ठीक है, तो ये बल्ब है मेरी, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, क्या आ रहा है, तो ये जो मेरा जो सर्किट है, इसके अंदर बल्ब मेरा जो ग्लो हो रहा है, इसके अंदर बैटरी से पावर जा रही है, तभी मेरा बल्ब ग्लो हो रहा है। तो अभी मुझे देखना हो इसमें करंट कितना है, हाउ आई विल मेजर द करंट, करंट कितना है मुझे मेजर तो करना पड़ेगा। उसके अलावा करंट, हमारा कोई भी डिवाइस हमें खरीदना हो ना, तो हमें पता नहीं चलता कि उसके लिए केबल कौन सा चाहिए, क्योंकि आपके घर के अंदर आपको अगर केबल लेना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपका लोड कितना है, लोड मीन्स करंट कितना है, ठीक है, करंट आपको जरूरी पता होना चाहिए, तभी आप केबल खरीद सकते हो, अदरवाइज नॉट, ओके। सो वी हैव टू मेजर द करंट, सो हाउ वी विल मेजर द करंट, which device is used to measure the current? The question is that which device is used to measure the current, and if we understand that this device will be used to measure the current, so how we will connect this device, what is the symbol of that device, okay, that all the thing that you have to think, and I will tell you in the next video, okay.
सो यहाँ तक सस्पेंस रहेगा, आप सुनिए, आप समझिए और मुझे आंसर बताना। टिल देन गुड बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज Zaid sir. I am resting here my video. Okay, on next video we will meet. Thank you. Bye bye.